New Hope TV, your encounter with God. In the Old Testament, देखिए पुराने नियम में the eldest son would receive double. और जो बड़ा बेटा होता था उसे दुगना भाग मिलता था। That was the inheritance of from the father. ये तो उनके पिता की ओर से मिलने वाली उनके लिए विरासत थी। But because of Jesus, लेकिन यीशु की वजह come से on, because of what? चलिए सब लोग बोलिए, Now your inheritance is 5 times. अब आपकी विरासत जो है यह 5 गुना है। Come on, somebody receive this. चलिए कोई तो ग्रहण करे इसे। You're not understanding what I'm trying to आप नहीं say. समझ जो कहना Some of चाहते you are हैं। getting it. आप इस कुछ लोग तो पा रहे हैं। Any area, कोई भी क्षेत्र, whether it is spiritual, चाहे आत्मिक हो, whether it's a marriage, whether it's your health, 5 times receive it in Jesus' name. चाहे आपकी शादी हो या स्वास्थ्य, 5 गुना ग्रहण करें यीशु। Genesis 43:34. Then that is Joseph took servings to them from before him, but for Benjamin's serving was 5 times as much as theirs. You see, Benjamin was the youngest brother of Joseph, and he's serving Benjamin himself. सबको एक बार दिया, he's giving him 5 times. 5 चिकन का टुकड़ा ले। हम देखते हैं कि बिन्यामीन जो था यूसुफ का छोटा भाई था। हम देखते हैं यूसुफ आकर उसकी सेवा टहल करने लगा। बाकी को तो उसने एक बार दिया, लेकिन यहाँ पर आकर इसको 5 बार 5 गुना दे रहा है। You want bread pudding? You want bread pudding? तुम्हें रोटी चाहिए? डालूं? Okay, Judah, you take 1, okay? चलो जुड़ा तुम एक रखो And you और तुम 5, 1, 2, 3. 5 बार ले, 1 2 3 लेते जाओ। Benjamin was like, what's और happening? बिन्यामीन सोचता है ये क्या हो रहा है You बाबा? want pudding? Take 5. तुम्हें पुडिंग चाहिए? चलो ले लो 5 बार ले। And Benjamin must have gone full. Come on और now. बिन्यामीन तो एकदम, Are you getting me right now? आपको समझ में आ रहा है इस वक्त? This is how. And the other brothers were like, what's happening? और दूसरे भाई लोग सोच में पड़ गए ये क्या हो रहा है यहाँ? You see, that was grace. और आप देख सकते हैं ये था अनुग्रह है, That was favor. ये थी भलाई। Benjamin did not deserve it, और बिन्यामीन इसका हकदार नहीं था, but he got it. लेकिन फिर भी उसने पाया। It's not because you are something goody. Hello. ये इस वजह से नहीं कि कुछ आप अच्छा हेलो बोलते हैं इसलिए नहीं। You and me are imperfect people. और देखिए आप और मैं, हम एक असिद्ध लोग हैं। Just before coming to the service, you fought with the rickshaw fellow. और सभा में आने से पहले आप रिक्शा के ड्राइवर से लड़े। And you're like, bind करेगा तेरे को, मैं पहले बोल रहा। And रिक्शा बोलता, मीटिंग में जाता, ऐसा बोलता तू। And you feel condemned inside. और आप अंदर ऐसा महसूस कर रहे हैं। And when you come over here, और जब आप यहाँ आते हैं, you feel that the fellow sitting next to you आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति जो है is holier than thou, you know. आपसे कहीं ज्यादा वो पवित्र है, But you don't know लेकिन आप नहीं जानते that before you, he's fought with another fellow and come. आपसे पहले वो किसी और व्यक्ति से लड़के आया। Some of you had a fight at home and you came. आप में से कुछ लोग घर में लड़ाई झगड़ा करके आए हैं। It says, जा meeting में. And many people, they don't understand that. और बहुत सारे लोग इस बात को समझते नहीं है That the church is not perfect. कि कलीसिया सिद्ध नहीं है। That's why we need grace. इसी वजह से हमें अनुग्रह की जरूरत Come है। on, somebody. You see the people outside, you know how they talk? आप देखते हैं बाहर के लोग, दुनिया के लोग किस तरह से बात I'm करते हैं। telling, when you see such people, जब आप ऐसे लोगों को देखेंगे, avoid them like the plague, because you see, they're only condemnation. You see, oh, you go to Corona Southern, you're doing like that. Why? Where do you go? तुम करोड़ों साल में जाते हो, ऐसा करते हो, तुम कहाँ जाते हो फिर? तूने बीवी से झगड़ा किया है, no problem. After the meeting, उसको lunch के लिए लेके जाओ. Don't quit on your marriage. Don't quit on your family. अपने परिवार Don't पर, quit on your ministry. अपने परिवार पर, अपनी शादी पर, अपनी सेवकाई पर हार मत मानिए, Because God is not quit on you. क्योंकि परमेश्वर ने आप पर हार नहीं माना है। To Benjamin, बिन्यामीन के he लिए gave him 5 servings. हम देखते हैं 5 गुना उसने दिया। So they drank and were merry with them. इस प्रकार उन्होंने उसके साथ मनमाना खाया पिया। I want to show you something. आपको कुछ दिखाना चाहते हैं? See, notice over it says that the brothers, they drank and they were merry with him. और देखिए यहाँ पे वचन में लिखा है कि उसके भाई उन्होंने उसके साथ में मनमाना खाया और पिया। You know, when God gives you 5, देखिए जब परमेश्वर आपको 5 देता है, you know, it's grace. देखिए ये अनुग्रह है, It's favor. ये भलाई है। Notice over here that Joseph gave Benjamin 5 times, but the others were not jealous now. अब गौर करें यहाँ पर कि यूसुफ ने अपने भाई बिन्यामीन को 5 गुना दिया, लेकिन बाकी जो दूसरे थे वे जलने नहीं लगे इससे। Because earlier, Jacob gave Joseph a coat and they were jealous and they put him in the pit. और क्योंकि पहले ऐसा हुआ था कि याकूब ने जब यूसुफ को रंग बिरंगा कपड़ा पहनाया तो बाकी भाई लोग जो ईर्ष्या करने लगे, जलने लगे और यूसुफ को पकड़ कर उन्हें गड्ढे में डाल दिया। This blessing that God gives you, there will be no sorrow attached with it. ये आशीष जो परमेश्वर आपको देता है, इस पे कोई दुख मिला हुआ नहीं रहेगा। The blessing of the Lord makes one rich and he adds no sorrow in Jesus' name. प्रभु की आशीष अमीर बनाती है और वो उसके साथ कोई दुख नहीं मिलाता यीशु के नाम में। Remember what I said right now. याद रखना जो हमने कहा भी। This is what is your portion. Receive it in Jesus' नहीं name. तो आपका हिस्सा है, ग्रहण करिए यीशु के You नाम में। will receive it. आप ग्रहण करेंगे। You will have children minus the sorrow. Receive it. Hallelujah.
Hallelujah. I am telling you in Jesus' name. कहते हैं आपसे यीशु के You नाम। will have a marriage minus the headaches in Jesus' name. आपके पास ऐसी शादी होगी जिसमें आपको सरदर्दी नहीं होगा। You have to receive this word. आपको ये वचन ग्रहण करना You है। know, some Johnny will come to you, शादी करेगा ना तो मालूम है ना क्या होता है? उसको बोल, जॉनी भाई हट जा बाजू में, तेरे शादी में हुआ, मेरे शादी में ऐसा नहीं होगा। I receive this grace in Jesus' name. ग्रहण करें इस अनुग्रह को यीशु के नाम में। और रहने दे, मालूम है क्या सुबह क्या हो गया था? उसको बोल, हम लोग झगड़ते हैं, लड़ते हैं, बंदर बिल्ली जैसे, लेकिन साथ में हंसते भी हैं। Come on. That's how it should be. इसी तरीके से होना चाहिए। So you see, these brothers had somehow changed. God had worked in their hearts. तो आप देख सकते हैं उसके भाइयों में एक बदलावट आ गया था, परमेश्वर ने उनके दिलों में काम किया था। So today, don't just pray for the double portion. Say, Lord, I open myself. I want all that you have for me. तो आज सिर्फ दुगना भाग के लिए प्रार्थना न करें, कहें परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं आपके लिए पूरी से खुला हुआ हूं, जो कुछ भी आपके पास मेरे लिए सब उंडेल दीजिए। Stop praying like this. और ऐसी प्रार्थना करना बंद करें। प्रभु मुझे छोटा सा कर दो। Don't get angry on me. गुस्सा मत होइए, गुस्सा You मत होइए। think that is humility before God. It's not humility, it's unbelief. आप सोचते हैं परमेश्वर के सामने नम्रता, ये नम्रता नहीं, ये अविश्वास है। How dare you limit God? आपकी इतनी हिम्मत, कैसे आप परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं? Lord, प्रभु I thank you, you're my father. धन्यवाद, आप मेरे पिता हैं। I'm not perfect, but thank God for Jesus. I stand before you. मैं सिद्ध नहीं हूं, लेकिन धन्यवाद यीशु के लिए, इस वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूं। Lord, can I ask you something today? प्रभु क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता Give हूं? me all you have for me. मेरे लिए जो कुछ भी आपके पास सब कुछ मुझे दे दो। You will make a difference in this society. आप समाज में एक फर्क लाएंगे। You will rise up in Jesus' name. आप ऊंचा उठ खड़े होंगे यीशु के That's नाम में। what you need today. यही तो आपको जरूरत है Your आज। father was a poor man. Your mother was dead and gone. Who will help you except the Lord? Lift your hand. आपके पिताजी Receive गरीब it. थे, Hallelujah. आपकी माँ भी गरीब थी, उम्र के चली गई, लेकिन कौन आपको अपने का प्रभु करेगा? हम लोग हमेशा ना दुनिया में ढूंढते हैं गॉडफादर गॉडफादर गॉडफादर। अरे गॉडफादर को छोड़, फादर गॉड साइड में है। किसी का हाथ नहीं, किसी का हाथ नहीं, किसी का हाथ क्यों चाहिए तेरे को? मेरा बाप बेचारा गरीब है, मेरा बाप बेचारा ऑर्डिनरी आदमी है, बट थैंक गॉड फॉर माय फादर। आई डोंट नीड अ गॉड फादर, यू हैव फादर गॉड। आपको गॉड फादर की जरूरत नहीं, आपके पास पिता Stop परमेश्वर है। saying like that. मेरे पीछे कोई हाथ नहीं है, there's no but support. नहीं तो मैं क्या करता था? मेरे पीछे किसी का हाथ नहीं, कोई सहारा Don't worry नहीं है। about the support. Today, God will be your support. Go ahead, do that business. Go ahead, rise up and do great things for Jesus. आगे Move बढ़े, ahead. परमेश्वर आपका सहारा है, Move ahead. बड़ा काम करे, यीशु के लिए ऊंचा खड़े हो जाए, वो व्यवसाय में आगे जाए। Somebody say, मेरी पहचान नहीं है, मेरे तो क्या हुआ पहचान है? सबसे बड़ी पहचान यीशु मसीह से बना। I want to encourage you, don't let these worldly things stop you. इन दुनिया की चीजों को आपको रोकने मत दीजिए। I don't stand here because I know somebody. I stand here because I received 5 times more. Hallelujah. पापा जी इसलिए यहाँ पे नहीं खड़े क्योंकि किसी को जानते नहीं, Receive इसलिए it. खड़े क्योंकि इन्होंने 5 गुना पाया है। How many of you are understanding this truth right now? कितने सच्चाई को समझ रहे हैं इस वक्त? Oh my goodness. Go with me to the book of Psalm 103 right now. चलिए निकाले से भजन संहिता का अध्याय 103। Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. हे मेरे प्राण प्रभु को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। Now, when the Bible says forget not, that means we can forget, okay? और देखिए जब बाइबल ऐसा कहते हैं भूलना मत, इसका मतलब हम भूल सकते हैं, ठीक You है? know, mother will tell, hey, संभाल के चला बाइक, हाँ, तू हीरो करता हूँ. So that means you have to be careful, okay? इसका मतलब ये होता है कि आपको सावधानी बरतनी है। So whenever the Bible says forget not all his benefits, it reveals to us the nature of man's forgetfulness. तो जब कभी बाइबल कहती है कि उसके उपकारों को भी ना भूलना, तो ये दर्शाती है कि मनुष्य का चरित्र क्या होता है, स्वभाव क्या होता है, कि वो भूल सकता है। Man forgets. इंसान भूल जाता है। Man forgets how God has kept him. इंसान भूल जाता है कि कैसे परमेश्वर ने उसको सुरक्षित रखा है। I'm telling you. कहते हैं आपसे, Just 10 months of difficulties and God, they forget all the lifetime of the benefits which God has और given बस them. 10 महीने की जो मुश्किलात दौर में से उनको गुजरना पड़ा, और पूरी जिंदगी भर जो परमेश्वर उनको बचाए रखा, उनके लिए जो कुछ किया था वे सब भूल गए आसानी से। जाओ, मैं नहीं, अभी प्रार्थना में नहीं आता। अच्छा, इतने साल किसने संभाला रहे? 2020 खाली लफड़ा हो गया। 2019 के पहले क्या हुआ? जाओ, मैं अभी चर्च में नहीं आता। मत आना, सीट भर जाएगा। डन मत। Mark my words, what I'm देख saying. लेना जो कह रहे हैं आपसे। Remember what I said. Don't know what happened to me. It happened to many people. आप नहीं जानते क्या हुआ मेरे साथ, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। Some people lost their sons and daughters, कुछ लोगों ने तो अपने बेटे बेटियों को गवा दिए, their parents, everything, and still they are in church. अपने माता पिता को वे गवा दिए, फिर भी वो कलीसिया में आए हैं। Forget not all his benefits. उसके किसी भी उपकार को कभी ना भूलना। Somebody say, I received this word. कोई कहे इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ। If you have grumbled against God,
Even I have sometimes, not now, but I have. Ask the Lord to forgive you. अगर आप प्रभु के खिलाफ में कुड़कुड़ाए हैं, देखिए हमने भी कभी किया था, अभी नहीं कभी, लेकिन परमेश्वर से क्षमा Forget मांगा। not all his benefits. उसके उपकारों को तू कभी ना भूलना। Write this down. लिख लीजिए। Who forgives all your iniquities. जो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। The first benefit, पहला फायदा forgiveness. क्षमा Who करना। forgives all your iniquities. जो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। Is pardon from your sin. आपके पापों से आपको क्षमा मिल जाना। How many sins does he forgive? कितने पापों क्षमा करता Who है? forgives all. I like the word all. जो तेरे सब, देखिए शब्द यहाँ आया है सब। God is not selective with your sin. God is not selective with your failures. I forgive 1, 3 and 5 but not 2 and 3 because you missed it and messed up. No. और देखिए परमेश्वर ऐसे no. के बीच में चुनाव नहीं करता कि चलो 1, 3, 5 को मैं क्षमा करता हूं, 2 और 4 को मैं क्षमा नहीं You know how करूंगा। man speaks? देखिए इंसान कैसे बोलता है? They speak like that. इस तरह से बोलते हैं। I'll forgive 1 and 5 but 2, 3 and 4 man forget it. 1 और 5 जो गलती तुमने किए थे इसको मैं क्षमा कर, देखिए 2, 3, 4 जो तुमने किया मैं But thank God you can come to the Lord today and say, God, you promised me forgiveness of all my sins. And guess what? You will walk from here with a clean slate in Jesus' name. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप Come उसकी on. उपस्थिति में आकर कह सकते हैं, प्रभु धन्यवाद कि तू मेरे सारे पापों को क्षमा करता है और आप यहां से बिल्कुल पाप मुक्त होकर जाएंगे। John the apostle understood the nature of God. और देखिए प्रेरित यूहन्ना ने प्रभु परमेश्वर के स्वभाव को समझा था। And he wrote in 1 John chapter 1 and verse 9, he cleanses us from all unrighteousness. Hurry up. यूहन्ना की पहली पत्री उसका पहला अध्याय उसके 90वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है Yes. कि वो हमारे सब पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और How many Sab. unrighteousness? सब। Said everyone, all. All. You know, sometimes we miss, sometimes we slip somewhere. And when we come to God and say, God, I messed up, oh God. देखिए कभी कभी हम चूक जाते हैं, हम फिसल जाते हैं और जब परमेश्वर के सामने हम आके कहते हैं परमेश्वर मुझसे गड़बड़ी हो गई। If you need a cleansing this morning, अगर इस सुबह आपको शुद्धिकरण चाहिए, then if you humble yourself and say, Lord, I need a cleansing, I tell you, He will cleanse you from all अगर unrighteousness. आप अपने आप को नम्र करके कहेंगे प्रभु मुझे शुद्ध कर दे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो आपके सब अधर्म से आपको शुद्ध करेगा। Let me show it to you the 5 benefits. It's forgiveness. Everyone say forgiveness. सभी लोग कहें क्षमा। Can we go deeper right now? क्या हम गहराई में जा सकते He says, who heals some of your diseases. हैं? जो तेरे कुछ रोगों को चंगा करता है। Actually, you know, दरअसल ना God can heal cancer, परमेश्वर कैंसर को चंगा कर but I सकता don't think He can heal this virus anymore. है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वायरस नाम की चीज को भी चंगा करता होगा। Listen, सुने, because you said it, you will not be healed. क्योंकि आपने सब बोला इसलिए आपको चंगाई नहीं There मिलेगी। are people ऐसे लोग हैं who were supposed to die. जो कि मरने वाले थे They came out. लेकिन वे बाहर निकल के आए। They are still walking somewhere here. अभी भी वो कहीं ना कहीं घूमते फिर रहे हैं। If I call, you will already have a testimony. अगर आपको बुलाया जाए तो आपके यहाँ पहले से गवाही And होगी। people who were not supposed to, और वे लोग जो नहीं होने वाले थे, I say this with humility, पूरी नम्रता से कह रहे हैं आपसे, who forgives all our iniquities, who heals all our diseases. Church, if there is a time that we must trust God for healing, it is now. वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, तेरे सब रोगों को चंगा करता। अगर कोई समय जब हमें परमेश्वर पर चंगाई के लिए भरोसा करना तो वो अभी का समय है। Trust God for your healing. अपनी चंगाई के लिए परमेश्वर में भरोसा करें। Trust God for your healing. अपनी चंगाई के लिए परमेश्वर में भरोसा Because करें। the समझिए, grace of God is too big. परमेश्वर का अनुग्रह बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल है। God bless the doctors. I love the सभी doctors. डॉक्टर जो है परमेश्वर ने आशीष दे। They don't know what to do, church. और देखिए दरअसल उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। Can I tell you something? It's time ये समय है we look to the Savior. कि हम उद्धारकर्ता की ओर देखें। I'm telling you. कहते हैं आपसे There was a man of God who said this like this. परमेश्वर एक जन जिन्होंने इस If प्रकार there was a time, से, अगर कोई समय है, you know, we are looking to saviors in the world. हम देखिए उद्धारकर्ता को दुनिया में खोजने की ये कोशिश कर रहे बचाएगा, हैं। ये बचाएगा, वो बचाएगी, वो बचाएगी, ये तो बचाएगा यार, ये तो बचाएगा, ये तो जरूर बचाएगा. And God is saying, ये कोई नहीं बचाएगा. और परमेश्वर कहता है कि ये कोई नहीं बचाएगा। It's time we look to Jesus. ये समय आ चुका है, हम यीशु की ओर देख, यीशु की ओर Every देखें। medicine, हर एक दवाई, everything हर एक चीज was God inspired. परमेश्वर के द्वारा प्रेरित की गई I है। went to a top doctor in Lilavati. Please excuse me, I will not take उच्च the पद के name. डॉक्टर के पास बन गए, And I was just having a word with him. उनसे बातचीत कर रहे थे। They had called me to pray over a big businessman whose name I would not like to mention. इनको बुलाया गया था किसी बड़े व्यवसायिक पर प्रार्थना करने के, जिनका नाम नहीं बताएंगे। And I usually don't go. अक्सर पासवान जी जाते नहीं। And some of our members, they were after me. Please don't do that, okay? Yeah, please, you must go. And I went, okay? And this doctor came and he introduced me. He says, this is my pastor. And that man said something very powerful. Can I say it? उस व्यक्ति ने कुछ बहुत ही जबरदस्त बात बताई। He said, Pastor Mike. उन्होंने कहा पासवान माइकल जी, He says, we doctors, we cut and stitch, but God heals. उन्होंने ऐसा कहा कि हम डॉक्टर लोग काटते हैं, टाका मारते हैं, लेकिन परमेश्वर ही है जो चंगा करता है। We cut, we stitch,
हम काटते हैं, हम टाका मार के जोड़ते हैं and we wait for God to heal. और हम इंतजार में रुके रहते हैं कि परमेश्वर चंगा करे। We are God's servants, he says. उन्होंने ऐसा बताया कि हम परमेश्वर के सेवक हैं। Now, such a big doctor और इतना बड़ा डॉक्टर speaking like this, इस प्रकार से बोलता है, then who are we to criticize anybody? तो कौन है हम कि किसी की निंदा करें? Who are we to say anything? Do you know many medicines were inspired by a dream, were inspired by something? Hello. आप जानते हैं बहुत सारी दवाइयां जो है, उपचार जो है, स्वप्न दर्शनों के माध्यम से प्रेरणा में पाकर Man बनाए cannot गए bring something out of himself. हैं। और इंसान कुछ भी अपने खुद के बलबूते से बाहर नहीं निकाल So सकता। as we look to the Lord for healing and say, God, I'm trusting you, Lord, to heal people. Can you start praying for people who are affected with that mind? उस दिमाग के साथ Don't depend on it. उस पर निर्भर मत रहे। Look to the Lord and say, Lord, heal my son, heal my daughter, and guess what? They will come out. Hallelujah. प्रभु की They ओर will देखकर come कहे, out. प्रभु मेरे बेटे मेरी बेटी को चंगा कर दे, और बताना चाहते हैं वे लोग बाहर निकल के आएंगे। Do you know earlier people were dying of polio? Hello. आप जानते हैं पहले के जमाने लोग जो है Yes. लोग पोलियो से पीड़ित होकर मरते थे। And then they came with a vaccine. फिर उसके बाद उन्होंने वैक्सीन निकाला। How many of you, if we Indians have marks over here, हम भारतीय लोगों के यहाँ पर एक निशान है, that is also a vaccine. ये भी तो एक वैक्सीन ही था ना, Who forgives our sins and heals all our diseases. जो हमारे सब अधर्म को क्षमा करता है और हमारे सारे लोगों को चंगा करता You है। need to look to God. हमें परमेश्वर को देखने की जरूरत Go to Matthew 9, please. Now, let me show you the connection between forgiveness and healing. Now, one day, they brought a man who could not walk, a paralytic man, to Jesus. और एक दिन ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है एक ऐसे व्यक्ति को जिसको लकवा मार गया था, चल नहीं पाता था, यीशु के पास लेकर आए। Now, the condition is paralysis. और देखिए उसकी हालत जो थी लकवापन, And Jesus could have moved his hands up and down and और said, यीशु बड़ी आसानी से अपने हाथों को ऐसा हरकत करते हुए, but what does Jesus हिलाते say हुए- to the man? लेकिन यीशु ने उस व्यक्ति से क्या कहा? He says, son, यीशु ने कहा, बेटे your sins are forgiven. तेरे पाप क्षमा हुए। Come on, are you there with me? Son? क्या साथ में है इस वक्त? And everybody saying, what guy this is? Who's he to say forgiveness of sins? And then we catch the story in verse 5. So Jesus says, which is easier to say, your sins are forgiven you, or to say, arise, get up, take your bed and walk? यीशु ने कहा आसान क्या है, ये कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर। Verse 6. छठा वचन। But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins. He looks at the paralytic and says, arise, take up your bed and go to your house in Bandra. Come on. परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, तब उसने उस लकवे के रोगी की ओर देखकर उससे कहा, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर बांद्रा में चला जा। Take your own name right now. अपना नाम लीजिए वहां। We all need to carry something and arise. Come on, hello. हम सबको देखिए उठाकर खड़े होना है, And he arose and departed to his house. और वह उठकर अपने घर चला गया। And the Pharisees were scratching their head. और जब फरीसी लोग अपना सिर खुजलाते रह गए, And Matthew wrote this. और फिर मत्ती ने लिखा, And he understood फिर वो समझ में आया that when God forgives our sins, कि जब परमेश्वर हमारे पाप क्षमा करता है, he also heals our diseases. तब वो हमारे रोगों को भी चंगा करता है। The connection between healing and forgiveness of sins. आप देख सकते हैं यहाँ पे पापों की क्षमा और चंगाई के बीच में एक जुड़ाव। Today when you come to God, तो आज जब आप परमेश्वर के सामने say, आते Lord, हैं, कहे प्रभु forgive me, Lord. मुझे क्षमा कर, And guess what? और सोचिए, You will see new strength in your body. आपके शरीर में एक नई ताकत को आप महसूस You will see करेंगे, new vitality in your organs. आपके अंगों में एक नई ऊर्जा आप पाएंगे। How many of you are receiving right now? कितने लोग ग्रहण कर रहे हैं? So don't think, oh, now I'm 72, nothing is going to happen. No, listen to me. The Lord will heal you. ऐसा मत सोचिए अब मेरी उम्र 72 साल की हो गई, कुछ होने वाला नहीं है। सुनिए, प्रभु आपको चंगा करेगा। The third thing, तीसरी चीज, who redeems your life from destruction. जो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। The third thing is redemption from destruction. और तीसरी चीज जो है वो नाश होने से बचाया जाना। You know, many of us not be sitting over here hadn't been for the grace of God. और देखिए हम में से बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए नहीं होते अगर परमेश्वर का अनुग्रह न He होता तो। rescues us from so many things. कई सारी मुसीबतों से, कई सारी चीजों से उसने हमको बचाया, That's why छुड़ाया। Moses wrote, he said, he gives his angels charge over us. और देखिए जैसे मूसा ने लिखा कि वो अपने स्वर्गदूतों को हमारे नियुक्त करता है कि हमारे पाँव में पत्थर से ठेस भी न लगे। देखिए You need it today. आपको जरूरत है आज इसकी। You need God to preserve you. जरूरत है कि परमेश्वर आपको सलामत रखे। You heard people just going and they just, somebody came and hit them out of nowhere. But thank God, you and I, we have to live under the shadow. He redeems our life from destruction. Somebody lift your hands, say, I receive this protection. परमेश्वर का धन्यवाद कि Yes. हम उसके छाया के Yes. नीचे निवास करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद उसकी सलामती के लिए। Open your mouth and begin to claim this. Who crowns you with loving kindness and tender mercies? Come on. और चौथा जो है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट वो पहनाता है। Touch your head and say, He crowns me. Come on, everyone. अपने सिर को छूकर कहें ऐसा। How many of you getting me right now? What is the crown? ये मुकुट क्या The है? crown is our position as children of God. और मुकुट जो है ये हमारा पद, यानी ये हमारा ओहदा है परमेश्वर के बच्चे के रूप In में। those days, उन दिनों में only kings and queens wore crowns. सिर्फ राजा और जो महारानियां होती थी वही मुकुट पहनते। It is our privilege. ये हमारा सम्मान है। The Bible says He died for us, He washed us and made us kings and priests unto God. Hello. और बाइबल ऐसा कहती है कि देखिए वो हमारे लिए मरा, उसने हमें धो लिया अपने लहू के द्वारा और उसने परमेश्वर
परमेश्वर पिता के लिए हमें राजा और याजक बनाया You know, है। one day I was praying over a girl, और एक दिन पासवान जी किसी लड़की के लिए प्रार्थना कर रहे थे, and she's a simple girl. वो सीधी सादी लड़की, You know, when I looked at her, और जब पासवान जी उन्होंने देखे, small figure lady, एक छोटी कद की लड़की, and I looked at her, पासवान जी उन्होंने देखे and I was seeing a crown on her head. और उनके सिर पर मुकुट देख रहे थे। You know, I told her, you have a special call. पासवान जी ने उनसे कहा कि देखो आपके ऊपर एक खास बुलाहट There है, are many ways the prophetic gift operates. और देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं भविष्यवाणी का वरदान कार्य When करने के it लिए। operates, sometimes God will show you things on a person. Hello, are और you कभी getting कभी me देखिए now? परमेश्वर उस व्यक्ति पर चीजों को आपको दिखाएगा। So I saw the crown. Person had 3 girls. और उसके 3 लड़कियां थी, Very simple looking girl. एक सीधी सादी I said, this girl, the Lord will use her very powerfully. पासवान जी ने कहा इस लड़की को परमेश्वर बड़े जबरदस्त सामर्थ्य तौर पे इस्तेमाल करेगा। And the father was like very, disinterested, और उनके पिता जो उनको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। क्या pastor बहुत fasting वास्टिंग करते हैं pastor, लेकिन क्या करें, how men are today, और देखिए आज के मर्द लोग कैसे होते हैं। boys, no, nothing like that. कोई खराबी नहीं इसमें। Dear friend, सुनिए, when God blesses you with a girl or a boy, it's a blessing from God. जब परमेश्वर आपको इस लड़के या लड़की से आशीष करता है, परमेश्वर की ओर से आशीष है। Some people write to me, कुछ लोग लिखते हैं, pastor लड़के के लिए प्रार्थना करो. पासवान जी लड़के के लिए प्रार्थना करो। I don't pray over such requests. ऐसी चीजों के लिए प्रार्थना नहीं करते। You're already putting somebody down. आप पहले से किसी को नीचे डाल रहे हैं। There's no difference boy girl. लड़का, What लड़की। boy girl, man? You know what happened to her? I'll tell you. बता दें क्या हुआ। You know the fellow रवि कुछ नहीं ऐसे, हाँ फास्टिंग करती है पास्टर, हमेशा फास्टिंग करती है। I said बहुत अच्छा है, इसके इस पे इसके सर के ऊपर मुकुट है। मुकुट है। You want to know what happened to her? Listen to me. अब जानते क्या हुआ उनके साथ? Simple girl. सीधी सादी लड़की, I'll tell you for God's glory. परमेश्वर की महिमा के लिए कहते हैं। After 6-7 months, 6-7 महीनों के बाद I get a card in my office. उनके ऑफिस में कार्ड आया, हाँ, I'm getting married, pastor. पासवान जी मेरी शादी हो रही है। This girl ये लड़की got married to a senior pastor in a church in Hyderabad. हैदराबाद में किसी वरिष्ठ पासवान जी से उनकी शादी हो गई। And now guess who's coming to invite me for the marriage? और जरा सोचिए भी कौन आ रहे हैं पासवान जी को आमंत्रित करने के लिए That शादी में। same fellow. वही व्यक्ति। मुकुट, ना? पास्टर, हाँ, आपने उस दिन बोला था, बराबर बोला। मैं बोला तेरा एंडोर्समेंट नहीं चाहिए को बोलने के लिए, मैं बराबर बोला। I don't need your endorsement. आपका समर्थन नहीं चाहिए। Please listen to me. सुनिए ध्यान से, You know, these things are not ordinary. ये सारी चीजें मामूली नहीं है। Who crowns you with loving kindness? जो करुणा का मुकुट तुम्हें पहनाता है। You are a child of God. आप परमेश्वर की संतान When हैं। you walk with the Lord, जब आप प्रभु के साथ चलते there'll हैं, be a crown on your head. आपके सिर पर एक मुकुट रहेगा। You know, those who move in the spirit, there are men of God, there are women of God, there'll be a crown on your head. और जो लोग आत्मा के आयाम में काम करते चलते हैं, देखिए परमेश्वर कैसे जन है, परमेश्वर कैसे महिला है, उनके सिर पर ऐसा मुकुट होता है। You may be living in a hut, भले आप किसी झोपड़े में but रहते you हो, will have a crown on your head. लेकिन आपके सिर पर वो मुकुट रहेगा। I want to tell you, आपसे कहना चाहते हैं, पास्टर, बट मैं हट में लेकिन मैं झोपड़े में रहता हूँ। राजा अगर पत्थर पे बैठ जाएगा वो भी सिंहासन हो जाता है। हालेलुया। Don't just give away your authority. Don't just give away your life. You are a king. You are a queen. Hallelujah. अपने अधिकार को यूं ही जाने मत दीजिए, ऐसे ही उसे छुपने मत दीजिएगा। आप एक राजा हैं, एक Live रानी हैं। godly for Jesus, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfy your mouth with good things. जो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता, तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। The fourth blessing चौथी आशीष, is good things. ये अच्छी चीज है। You know, how do you know you are poor? और कैसे आप जान सकते हैं कि आप गरीब हैं? You eat what is before you. जब जो आपके सामने रखा हुआ खाते हैं वो। But prosperity is, समृद्धि मतलब you have a choice. आपके पास चुनाव होता है। When He blesses you something, देखिए जब परमेश्वर आपको किसी चीज से आशीष देता है, it's not the things. You see, God's blessing will come upon your bread. God's blessing will come upon your water. God's blessing will come upon your dal roti, and it will bless you. Hallelujah. परमेश्वर की आशीष आपके रोटी पर आएगी, आपके पानी पर आएगी, आपके दाल रोटी पर आएगी और ये आपको संतुष्ट कर देगी। The last thing, see what it says. आखिरी चीज। It says, "Who satisfy your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagle." जो तेरी लालसा को, तेरे मुंह को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब यानी चील के समान The नई fifth हो thing जाती is है। youthfulness. और पांचवी जो है People, जवानी, those who are fasting, praying, fasting, and people say, "क्या हमेशा fasting." You look at them and they say, "कितना है? 6:45? नहीं, मैं 60 है." I'm telling you, this is a blessing of God. ये परमेश्वर की आशीष है। Come on, somebody, are you receiving this right now? क्या कोई ग्रहण कर रहा है इस वक्त? I pray may youthfulness come to our church in Jesus' प्रार्थना name. करते हैं कि जवानी पन आ जाए। 5 things. Everyone say 5 5 चीजें। things.
सभी लोग कहें 5 Do you चीजें। know what is a hot topic in today's world? और आज की दुनिया में सबसे सनसनीखेज विषय जो है वो क्या है जानते हैं? Everybody wants to look younger. हर कोई चाहता है कि जवान दिखे, But you see, this is the blessing in the Lord. लेकिन आप देखते हैं ये तो प्रभु में एक आशीष है। The Bible says, बाइबल कहती है Sarah was so much old and yet Abimelech was after her, whistling at her. और सारा एकदम बूढ़ी थी, लेकिन फिर भी अबीमेलेक जो उसके पीछे लगा था उसको देख के सिटी मारता That था। was the anointing. ये था अभिषेक। I decree and declare, let it come upon us. आदेश में ऐलान करते हैं कि हम पर आ जाए। This is in the word of God. I'm not fooling around. ये परमेश्वर के वचन में पाया जाता है, ऐसी बेवकूफी की बात Lift नहीं your करते। hand and say, I receive it. अपने हाथ उठा करके मैं ग्रहण करता हूँ। 5 is a number of grace. 5 जो है अनुग्रह की संख्या This है। is what God promised, and it will come upon your life. और देखिए यही वो चीज जो परमेश्वर वादा करता है कि आपकी जिंदगी पर आए। The Benjamin generation will have abundance spiritually and physically. और बिन्यामीन की पीढ़ी के पास देखिए बहुतायत में होगी, आत्मिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी। Why? क्यों? So that they can reach their generation for the Lord. Hallelujah. ताकि ये जो है प्रभु के लिए उस पीढ़ी तक आगे बढ़ाया जा सके। This is what it should be. ऐसा ये होना चाहिए। When Benjamin got the 5 garments, जब देखते हैं कि जब बिन्यामीन को 5 वस्त्र मिले, he went with his brothers. वो अपने भाइयों के साथ He went back to Canaan. वापस वो कनान देश में गए। And he brought all the people from Canaan into Egypt with Joseph. उसके बाद हम देखते हैं कनान में के सभी लोगों को, अपने सभी कुटुंबियों को वो वापस यूसुफ के साथ ले आए। Today, आज desire God to bless you. परमेश्वर से लालसा करे कि आपको आशीष दे, But it is not for you. लेकिन ये आपके लिए नहीं होगा। You have to bring people out of that place. आपको लोगों को उस जगह से लाना है। Maybe he did not wear the 5 garments one together. और कदाचित देखिए उसने 5 कपड़े एक साथ नहीं पहने होंगे एक But के he ऊपर must एक। have gone and given somebody. लेकिन हो सकता है कि जाकर वो किसी को दिया होगा। Say, we are going to Egypt now. हम अभी मिस्र में जा रहे You हैं, need to dress properly. आपको अच्छा सा कपड़ा पहनना चाहिए। Afterwards, the whole gang came to Egypt. पहले देखिए उसके भाई लोग आए थे, फिर उसके बाद देखते हैं उनका पूरा घराना जो है कनान से निकल के मिस्र में Can you आया। have that heart today? क्या आपके पास ये दिल होगा? Can you share your blessing? क्या आप अपनी आशीष बांट सकते? Not only physical blessing, सिर्फ शारीरिक भौतिक but आशीष ही spiritual नहीं, blessing. लेकिन आत्मिक आशीष Maybe भी। you're grown in the anointing. शायद हो सकता है आप अभिषेक में बढ़ गए Can हो। you pray for क्या somebody? आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे? Can you serve the Lord? क्या आप प्रभु की सेवा करेंगे? And I tell you, कहते हैं आपसे that grace will grow upon your वो life. अनुग्रह जो आपकी जिंदगी में बढ़ता जाएगा। You need to raise your hand and say, I receive this blessing right आपको अपने now. हाथ उठाकर कहना, मैं इस आशीष को ग्रहण करता हूँ। Give Jesus a big shout of praise, somebody. चलिए यीशु को जोरदार ताली की भेंट चढ़ाएं इस वक्त।